Welcome to all. I am Dr. Meera Gupta, Professor and Head of Department of Physics at Government Dr. W. Patankar Girls PG College, Durg. Today I am presenting a video lecture for the BSc Final and MSc Physics second semester students of the paper 3rd, Unit 3rd. It covers the microwave devices. Under this topic, here I am discussing about the tunnel diode and backward diode. Now I am starting the video lecture. Now here in this video, first we come to the contents. First, introduction, then what are microwave devices. Under these devices, we have discussed about the tunnel diode and backward diode, their characterization, advantages and disadvantages and their applications. Now we have come to the introduction part, and shortly we have discussed that what are the semiconductors. A semiconductor is a substance, usually a solid chemical elements or compound, that can conduct electricity under some condition but not other, making it a good medium for the control of electrical current. Its conductance varies depending on the current or voltage applied to a control electrode or on the intensity of irradiation by infrared, visible light, ultraviolet or X-rays. The specific properties of semiconductor depends on the impurities or dopants added to it. An N-type semiconductor carries current mainly in the form of negative charge electrons in a manner similar to the conduction of current in a wire. A P-type semiconductor carries current predominantly as electron deficiency called holes. A hole has a positive electric charge equal and opposite to the charge on the electron. In a semiconductor material, the flow of holes occurs in a direction opposite to the flow of electrons. तो जैसा कि हमने जाना कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो कुछ जो है वो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये जो है वो इनकी जो कंडक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है. इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इसमें थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को इम्प्योरिटीज़ के रूप में डोट कर देते हैं. तो जिसमें हम थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और जिसमें फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है. पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स के रूप में तो होते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स के रूप में होते हैं. बट जब हम इसमें इम्प्योरिटी डोप्ट करते हैं तो कुछ मात्रा में अपोजिट चार्ज कैरियर्स, मतलब पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप में जो है कुछ मात्रा में होल्स जो है माइनॉरिटी कैरियर्स के रूप में जनरेट हो जाते हैं. तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है कि हमने इसमें इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन क्या रखा है. इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन को चेंज करके हम अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है वो बना सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डायोड क्या होते हैं. डायोड जो है वो 2 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें जो है एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होती है. सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो पीएन जंक्शन डायोड से बनाया जाता है, पीएन जंक्शन से बनाया जाता है, जिसको हम सेमीकंडक्टर डायोड्स कहते हैं. Many semiconductor diodes are available for microwave applications, mainly designed to take care of signal detection and mixing purpose. Now here our topic is microwave devices. Then what are the microwave devices? The devices which are used for the generation and amplification of microwaves as known as microwave devices.
यहाँ पर दो तरह के माइक्रोवेव डिवाइसेस हैं, फर्स्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस देन ट्यूब डिवाइसेस, बट आजकल जो है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर 4 माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर डिवाइस डायोड्स हैं, से फर्स्ट टनल डायोड, बैकवर्ड डायोड, इम्पैक्ट डायोड एंड गन डायोड। यहाँ पर हम 2 डायोड ही डिस्कस करेंगे, टनल डायोड और बैकवर्ड डायोड। नेक्स्ट इसका जो वीडियो होगा उसमें हम इम्पैक्ट डायोड और गन डायोड को भी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसको भी आप देखिए, जिसमें हम इम्पैक्ट डायोड और गन डायोड को डिस्कस करेंगे। देन टनल डायोड और इशाकी डायोड, इसको हम इशाकी डायोड भी कहते हैं। ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने टनल डायोड को फर्स्ट टाइम बनाया था, इसलिए उनके नाम पर ही इसको हम इशाकी डायोड कहते हैं। उनको इस इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ था। देन व्हाट आर टनल डायोड? टनल डायोड इज ए टू टर्मिनल डिवाइस दैट exhibits a region of incremental negative resistance in a tunnel diode. They are usually made of germanium or gallium arsenide because of high electron mobility and reasonable gap energy. It is a junction diode. Both P and N region in tunnel diode are heavily doped and consequently the depletion region is extremely narrow. टनल डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है, बस इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड और इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसका पी और एन रीजन जो है इसमें इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत अधिक होता है, हाईली डोप्ड होते हैं। इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होता है तो पी और एन जंक्शन के बीच में जो डेप्लेशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर जो बनता है वो बहुत नैरो होता है। नैरो इसलिए होता है कि जब इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो पी और एन टाइप में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, और जब पी टाइप में होल्स बहुत अधिक होंगे और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे तो ये चार्ज कैरियर्स यानी पी टाइप के पूरे होल्स एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगने लग जाता है। इसी तरह से एन टाइप के रीजन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक मात्रा में होंगे जो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, जिसके कारण जो डेप्लेशन रीजन है वो काफ़ी नैरो होती है। सच ए मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन इन विच चार्ज carriers having a very little energy punch through the barrier directly instead of climbing over it is called tunneling. Due to this reason the diode is known as tunnel diode. अब टनल डायोड में क्या होता है कि जो डेप्लेशन लेयर है वो बहुत पतली होती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स हैं वो उनकी एनर्जी जो है, उनका जो बाहर से जब हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत अधिक ना होने के बावजूद भी वो उस डेप्लेशन लेयर को पेनिट्रेट कर जाते हैं। जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो तो उस डेप्लेशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर को जम कर जाएंगे, बट जिनकी एनर्जी ज़्यादा नहीं भी है वो उस पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट कर जाएंगे, और इस घटना को ही हम कहते हैं टनलिंग इफेक्ट, और इस कारण ही इसका नाम है टनल डायोड। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टनल डायोड इज अप टू 100 GHz. Now here this is the construction diagram of tunnel diode. इसमें एक कंस्ट्रक्शन के समय एक विशेषता और होती है, एक स्पेशलिटी और होती है कि इसका एन रीजन और पी रीजन दोनों हैविली डोप्ड तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक रीजन जो है वो वाइड होता है और दूसरा जो है वो थोड़ा पतला रहता है। इसके कारण इनके बीच में जो डेप्लेशन लेयर बनती है, ये यहाँ पर जो डेप्लेशन लेयर बनती है वो पतली के साथ साथ छोटी भी होती है, जिससे टनलिंग इफेक्ट जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। ये इसकी एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर ये इसका सिंबल है टनल डायोड का, जिसमें आप देख रहे हैं कि एनोड पर एरो लगाया हुआ है जिसकी डायरेक्शन कैथोड की तरफ है, और कैथोड जो है वो टी आकार का बना रहता है। ये इसमें दोनों तरफ जो है ये अंदर की तरफ जो है वो लाइंस खींची हुई हैं, जिसको हम समझ सकते हैं कि ये टी आकार का है। सो दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड।
एक्चुअली में एन टाइप को हम कैथोड इसलिए कहते हैं कि कैथोड का मतलब होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो, और एनोड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। सो एन टाइप को हम कैथोड कहेंगे और पी टाइप को जो है वो एनोड कहेंगे। एनोड पर एरो जो है हमने एनोड से कैथोड की ओर लगाया हुआ है। ये एरो जो है वो करंट की डायरेक्शन शो करती है, और जैसा कि हम जानते हैं करंट की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन होती है, इसलिए एनोड पर एरो जो है वो इनर साइड लगा हुआ है, कैथोड की तरफ लगा हुआ है। तो दिस इज हियर एन टाइप कैथोड एंड पी टाइप एनोड। Now the characteristics of tunnel diode. First, volt ampere characteristic. Volt ampere characteristics में आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट पेज पर है here. So first we discussed it. The right hand rising portion is the normal forward bias diode region of the device. The current variation in the vicinity of the region is due to the quantum mechanical tunneling of electrons through narrow space charge region of the junction. As the applied voltage is increased from 0, tunneling current first increases and then decreases towards 0. This decrease in current with increased voltage results in a negative resistance region. In this region constitute the most useful property of the diode. In this region, the diode instead of absorption power produces power. When the forward voltage is further increased, the tunneling effect ceases and current increase in a manner similar to the conventional diode. Now, we have discussed here the VI characteristics. Here, this is voltage and this is current. Initially, when B increases the voltage, the current है वो भी इंक्रीज होती है, वोल्टेज के साथ साथ करंट भी इंक्रीज होती है अप टू पीक करंट, यानी जिस वोल्टेज पर करंट अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, उसको हम कहते हैं पीक वोल्टेज। आफ्टर पीक वोल्टेज यदि हम वोल्टेज को और अधिक इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं कि करंट जो है वो धीरे धीरे जीरो की तरफ डिक्रीज होने लग जाती है, और जब करंट का मान सबसे कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, उसको हम कहते हैं वैली वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज से वैली वोल्टेज तक ये रीजन यानी ए से लेकर के बी तक ये कहलाता है इसका निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इस पार्ट में टनल डायोड का जो डायनेमिकल रेजिस्टेंस है वो निगेटिव हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, और पहले ये टनलिंग के कारण करंट एकदम इंक्रीज होती है और यहाँ पर निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पर टनलिंग इफेक्ट जो है वो सीज हो जाता है और करंट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद भी यदि हम और अधिक वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये वोल्टेज के साथ करंट जो है वो और अधिक बढ़ने लग जाती है, और इसका ये पोर्शन ठीक पीएन जंक्शन कन्वेंशनल डायोड की तरह से ही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होने लग जाता है। जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रैक्टिकल में जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो निगेटिव रेजिस्टेंस पोर्शन है बहुत कम वोल्टेज से, मतलब ये कम वोल्टेज के लिए ही ये शो होता है। यदि हम थोड़ा सा भी इस वोल्टेज से इंक्रीज हो जाएंगे तो ये निगेटिव रेजिस्टेंस पोर्शन जो है हमें नहीं समझ में आता है, नहीं दिखाई देता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स खींचते समय हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि इसका वोल्टेज जो है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ाना है, तब आपको ये दिखेगा कि कहाँ पर ये पीक करंट मिल रही है, पीक वोल्टेज मिल रहा है, और इसके बाद ये निगेटिव रेजिस्टेंस, क्योंकि इससे यदि आप थोड़ा सा भी ये जंप हो गया वोल्टेज तो फिर ये निगेटिव पोर्शन आपको नहीं समझ में आएगा और ये फिर पीएन जंक्शन डायोड की तरह से ही अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स देने लगेगा। इसलिए प्रैक्टिकल करते समय इसको विशेष तौर से ध्यान रखना है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन देखने के लिए। इसका ये निगेटिव रेजिस्टेंस पोर्शन जो है यही इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का उपयोग जो है इसकी स्पेशलिटी शो करता है। तो यहाँ पर जैसा हमने आपको बताया था कि इस रीजन में डायोड जो है पावर का एब्जॉर्प्शन करने की बजाय पावर को प्रोड्यूस करने लग जाता है।
तो ये इस तरह से ये इसका पर्टिकुलर जो है वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है और इसी का इम्पोर्टेंस, इसी का जो एप्लीकेशन जो है वो इसकी विशेषता बनाता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टनल डायोड? दिस इज़ ए लॉन्ग लाइफ डिवाइस। इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है ये। इसकी हाई स्पीड ऑपरेशन डिवाइस है ये, इसका स्पीड जो है बहुत अच्छा रहता है। इसका नॉइस लेवल जो है वो बहुत कम होता है। नॉइस लेवल का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें कुछ ना कुछ शोर होता है जब ये ऑपरेट होता है, तो इसका नॉइस लेवल जो है वो बहुत कम होता है। ये एक सिंपल एंड लो कॉस्ट डिवाइस है, बहुत आसानी से बनता है। ये लो पावर कंजम्पशन डिवाइस है, इसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है। डिसएडवांटेज ये है कि टनल डायोड कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड इज लार्ज नंबर। बहुत अधिक मात्रा में ये जो इनका फैब्रिकेशन नहीं होता है। बीइंग ए टू टर्मिनल डिवाइस, द इनपुट एंड आउटपुट आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। Now what are the applications of tunnel diode? This is used in oscillator circuit. This is used in also microwave circuits, used as an ultra high speed switches and used in FM receivers also. Now we come to the backward diode. A backward diode is a special form of tunnel diode in which the negative resistance peak and valley region from the tunnel diode characteristics are removed by suitable doping and etching during manufacture. The operation of the diode takes place in reverse biasing mode, thus it is called backward diode. इसका ऑपरेशन जो है वो रिवर्स बायसिंग से ही शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसको बैकवर्ड डायोड कहते हैं। दिस डायोड इज समटाइम्स कॉल्ड द टनल रेक्टिफायर ऑल्सो। मोस्टली गैलिनियम आर्सेनाइड इज यूज्ड एज ए semiconductor material for its fabrication. Now here the fabrication or construction diagram of the backward diode. This is the symbol. The construction of backward diode is similar to that of tunnel diode, but one side of the junction is lightly doped and other side of the junction is heavily doped. सिमिलर होता है बिल्कुल टनल डायोड की तरह से, बट अंतर सिर्फ यह है कि एक सेमीकंडक्टर जो है वो हाईली डोप्ड होता है और दूसरा जो है वो लाइटली डोप्ड होता है, बट बाकी कंस्ट्रक्शन वो सेम है। दिस इज द सिंबल ऑफ बैकवर्ड डायोड। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो कैथोड है इसमें दोनों तरफ जो है वो पैरेलल लाइंस, उसमें टी आकार का बनाते हैं। एक तरफ होता है इनर साइड, ये एरोस ये लाइंस खींचे रहती हैं, इसमें दोनों तरफ जो है वो लाइन खींचे रहती है। तो दिस इज एनोड पी टाइप, दिस इज कैथोड एन टाइप। Now the characteristics of backward diode, volt ampere characteristics. The forward VI characteristic is the same as that of an ordinary PN diode. The breakdown starts when reverse voltage is applied. Here देख रहे हैं आप, यहाँ से इसका ब्रेकडाउन जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस से शुरू हो जाती है। और in the case of general breakdown it starts at a particular voltage. In this diode the voltage remains relatively constant when it is connected in reverse bias. The backward diode is a special form of tunnel diode in which the tunneling phenomena is only recipient and the negative resistance region virtually disappears. The forward current is very small and becomes equivalent to the reverse current of a conventional diode. यहाँ पर ये जनरल डायोड के रिवर्स बायस की करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ आप देख रहे हैं ये बैकवर्ड डायोड जो है वो रिवर्स वोल्टेज से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ये इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है वो यहाँ पर इसका डिसअपियर हो जाता है और यहाँ पर ये कन्वेंशनल पीएन जंक्शन डायोड की करेक्टरिस्टिक्स ही देने लग जाता है। चूँकि रिवर्स वायर से इसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है, ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, इसीलिए हमने इसको बैकवर्ड डायोड कहा हुआ है। जनरल डायोड का ब्रेकडाउन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर होता है, यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन जो है कम रिवर्स वोल्टेज से ही होने लग जाता है। तो ये एक इसकी विशेषता है करेक्टरिस्टिक्स की, इसलिए इसको डिफरेंट टाइप का डायोड इसका नाम दिया गया। इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग टाइप की है। और
इसलिए इसको बैकवर्ड डायोड भी कहते हैं। देन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बैकवर्ड डायोड? लो टेम्परेचर सेंसिटिविटी, इसकी सेंसिटिविटी जो है टेम्परेचर के लिए बहुत कम होती है। जनरली डायोड जो है बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, इसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम होती है, मतलब इस पर टेम्परेचर का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका ब्रेकडाउन पॉइंट जो है वो काफ़ी लो होता है, रिवर्स बायस पर ही होता है, वहाँ से इसका ब्रेक पॉइंट जो है वो शुरू हो जाता है, वहाँ से ही करंट मिलना भी शुरू हो जाती है। सो वो ब्रेक पॉइंट, लो ब्रेक पॉइंट। लो नॉइज़ लेवल, इसका नॉइज़ लेवल जो है वो भी बहुत कम होता है। इसकी फ्री एफिशिएंसी जो है वो हाई एफिशिएंट होता है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी होती है। नाउ हियर दिस इज कंप्लीटेड द वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने जो टनल डायोड और बैकवर्ड डायोड डिस्कस किया है, ये दोनों टॉपिक आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों बहुत ही यूज़फुल हैं आपके लिए। प्रैक्टिकल में जनरली ऐसा होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बच्चे लोग बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पाते हैं। जैसे टनल डायोड का ब्रेकडाउन, टनल इफेक्ट क्या होता है, वो सब में कन्फ्यूज़न होता है। वह वाई दी डेप्लेशन रीजन इज़ नैरो। सो वो चीज़ें जो हैं हमने इसमें अच्छे से डिस्कस की हैं। यदि आप इसे अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको जो सारे कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल्स में पूछे जाने वाले वाइवा जो है वो आपको क्लियर होंगे, उसके क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर होंगे। सेमीकंडक्टर्स क्या है, टनल डायोड क्या है, ये बहुत अच्छे से इसमें डिस्कस किया हुआ। देन थैंक यू टू ऑल।